What came to your mind? Yeah. What came to your mind when you saw this word blueprint of life? Frame. Great. You can also put it in the chat box if you may just want to write. Maybe our plans for life. Plans for life. Okay. Wonderful. Great. All right. So we have other हेलो people. मैं लेट हो गई थी आई एम सॉरी आई जस्ट कुड लॉग इन No हाय problem. सिस्टर अंकिता हाय Hello, एवरीबॉडी Mitu. Hello. So Mitu, I was asking this question कि blueprint of life नाम सुन के आपने कुछ तो सोचा होगा इसलिए आपने ज्वाइन किया होगा. What came to your mind when you heard this name? मेरा ब्लूप्रिंट का सारा फोकस अभी सिर्फ और सिर्फ कामनेस ऑफ माइंड और हैप्पीनेस ऑफ माय फैमिली पे और कुछ नहीं दैट्स Wonderful. माय ब्लूप्रिंट That's a part of the blueprint. Okay. So a framework, a blueprint, plan, design, calmness, happiness of the mind. Okay. Anybody else would like to share? Kind of a pointers we are making for going ahead, for anything Okay. achieving. Okay. So maybe for your goals. Great. Wonderful. Okay. So let's go ahead then looking at what blueprint are we talking about and what are we exactly going to do with this blueprint that we are talking about. Okay. So here we go. Yeah. So before we go and look at what exactly the blueprint is, let me set the ground for this session because to have clear expectations is very important. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ और कर रहे हैं और आप कुछ और सोच के आ रहे हो and then there is a clash between your expectations and our expectations. So before we go to that, I would want you to take this question, put it in your mind, keep it in your mind for a few seconds and then answer. What is that one burning question of your life which, if you feel gets answered, is going to open doors of many clarities या many revelations? एक ऐसा सवाल आपकी जिंदगी का मतलब किसी भी तरीके का हो सकता है इन टर्म्स ऑफ होता ना मुझे इस चीज के बारे में समझना है इस चीज के बारे में जानना है जो कि अगर आपको उसके नजदीक ले आए आंसर्स के नजदीक ले आए तो आपकी लाइफ में काफी सारी चीजें खुल जाएंगी maybe in terms of clarity, in terms of answers. What is that one burning question of your life? What is the purpose? Are you saying what is the purpose of my life? Yes. Okay, that's very deep and very burning actually. Yep, okay, great. Thanks, Nidhi. Okay, so what about other participants? What is your one burning question? I don't think so there is just one question in anybody's mind but Oh, you're right. but There, हाँ ये जरूर लगता है कि if I have been put on this earth then if I have not achieved or I am not able to do what I think I am suitable or I should do then what's the point? बिकॉज कहते हैं ना कि भगवान ने अगर सृष्टि में एक पत्थर भी किसी किनारे पे रखा छोड़ दिया तो उसका भी कोई कारण होगा right. लेकिन So, if you help me reframe what you said, are you saying what is the meaning of your existence specifically in this world, in this framework right now? हाँ yes. Okay, great. That is again very deep question, I must say. Okay, Shrimi, Shafali, Prachi, would you like to share? So yeah, I tried a lot to think about myself at the moment, but looking at the whole scenario, in fact, since morning I was thinking that there's nothing we could do except prayer. So I wish I could have done something or maybe contributed in world peace because the current scenario is not getting better; it's getting worse day by day, and that will eventually affect us one or the other day. Okay. So I was just feeling that if, in any ways, if I could contribute to it. So yes, I was feeling little helpless. So you're talking, how could you contribute? Or what is your contribution to the world in making it better? That's correct. All right, great. Okay. Any other questions anybody would like to share? Since we are less, so I'm taking just advantage of, connecting one-on-one.
Okay, Prachi, would you like to share? And if somebody cannot speak, they can write in the chat as well. Okay, so Shefali, any of your questions? Yeah, I am chasing my dream. What is the reason that it is not? I have not achieved that dream so far. Okay, reason of being distant from your dream. Okay, great. Interesting. We have questions around similar lines, and obviously, some way or the other, we are all connected, previously connected. So, obviously, बातें कहीं ना कहीं हमारे सवाल और जवाब almost similar lines के आसपास होंगे. Okay, great. अब आई विल नॉट से कि आपको इन सवालों के जवाब आज मिल जाएंगे या अगले सेशन में मिलेंगे या कौन से सेशन में मिलेंगे, but definitely this particular journey is going to be an exploration from perhaps moving ahead to every milestone, which is going to take you closer to the truth that we are searching in our lives. And I believe each one of us is searching one or the other truth in our lives that we feel somewhere is incomplete, जिसका अगर हमें जवाब मिल जाए तो हमारी लाइफ का ना कुछ बंद दरवाजा खुल जाएगा और हम दूसरी तरफ देख पाएंगे जो हमें भी शायद नहीं नजर आ रहा है. So this journey is about that. This journey is about actually, crossing those several milestones. Okay. So now what exactly lays ahead is we are quickly going to have a look through of what this session aims at, what it focuses at, and how is it going to be. Okay. So what are we going to focus on? We are going to focus on the familiarity with rhythm. Now, what do I mean by familiarity with rhythm? सो आज अगर आप देखो हम अपनी लाइफ को जब देखते हैं हमें ऐसा लगता है कुछ भी कहीं से भी अचानक से हो जाता है. यू नेवर नो व्हाट द नेक्स्ट मोमेंट इज कैरिंग. यू नेवर नो कि कब क्या हो जाए. जनरली बहुत से लोगों के मन में ये डर भी रहता है. इसलिए हमें लगता है कि इट इज सो मच डिसऑर्डर इन द वर्ल्ड, देयर इज सो मच डिसऑर्डर इन द लाइफ कि पता नहीं क्यों हो रहा है. वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट. एंड समवेयर और द अदर द रिदम, जिसको जैसे बोलते हैं ना म्यूजिक के नोट्स है, कहीं ना कहीं we feel that life has gone a bit distance from that. Do we agree that sometimes there is so much out of rhythm, insynchronity or disharmony in life? We are actually going to see whether there is an element of rhythm in life या life ऐसी chaos में ही create हुई थी और chaos में ही हमको जीनी है. And if there is, then what is it and how can we get familiar with that? Next, we are going to explore life from a universal perspective. अभी most of us look at lives from an individual perspective. Most of us, we do. Yes, now that we have different times happening for the past 1.5 years, we have started to look at life from a universal perspective or a universal consciousness. हमें नजर आ रहा है interlinkages कहाँ पर क्या हो रही हैं. So we are actually going to explore कि इस पूरी universal consciousness में क्या क्या interconnectedness है और कैसे वो एक दूसरे को impact करती है. And then a very important aspect that we are going to go through is decoding the guiding laws. Definitely, if there is some play always has certain rules and laws. It cannot exist within those laws and rules. हमारी लाइफ के कौन से ऐसे लॉज है जो इसको गाइड करते हैं and what are they and how can we align with them? So this is going to be the focus of the session. Now, a session matlab the series that we are going to go through. The next part is what can you expect? So ये तो focus है, but इससे आप expect क्या कर सकते हो? Outcome क्या निकाल सकते हैं? Clarity, answers, small, big, will always depend upon the individual you because each individual is on a different journey altogether. सबकी अलग अलग journey है, सब अलग अलग journey में अलग अलग milestones पर है. Insights and revelations, definitely we can look forward to those. Again, it will be individualistic. Tools for redesigning. If I've understood once that this is how the life was designed, then how can I redesign it? उसके tools क्या हैं? हम उसको देखेंगे. Enhanced powers, which is connected to the first point, and you can definitely expect a new you because every time you're recreating, you're becoming new as well. How this happens? It will gradually unfold in the journey. Okay. Now, how this is going to take place, the entire series or sessions, like I said, it is co-creation. It is not a speaker
me or someone else being here, speaking to you, showing you PPT, telling you Gyan, concept, rules and laws. Nothing of that. We can just understand that we have created a small setup for you, because similar kind of setup was created for me that helped me move ahead in my journey of inside and outside journey. So I've just created a setup for you. I will help you play around with the setup so that you can have your own discoveries, right? So it is co-creating. It is not about me. It is, that is why I said it is you centric. It is going to be experiential. In every session, there is going to be one or the other form of experience. We are going to have one also today. Concepts along with practices will be shared, inner work, and then question and answers at the end of every session. So this is what the expectation setting is. Took us some bit time, but had to be done so that हम clear रहें कि होने क्या वाला है आगे. Okay, now let's come to the main part of how we are going to start with. Great. So we can see a room here. Beautiful white room. Now I want you to look around your room. आप एक बारी अपने रूम में आसपास नजर घुमा के देखें और देखें आपके रूम में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं. What all objects you see in the room? Okay. Now can you just name a few of them that you see in your room? I see a table. Table. Okay. Sofa. Okay. And fan, wall clock, painting, Okay. Great. Wall clock, paintings. What else? floor, door, window. Okay. Okay. Great. I just happen to visualize your room में. हाँ, displacement कुछ भी हो सकती है, but I happen to visualize the room. Okay. So आपको आसपास में बहुत सारे objects नजर आ रहे होंगे, है ना? किसी पे नजर गई है, किसी पे नहीं गई है. Now I just want you to think that for a moment, look at any of the object and just see, ask yourself this question. Whatever object you are looking at, वो object originally कितनी बारी create हुआ था? For example, if it's a pen, no, not example, this is actually a pen only. But for example, if we take this into consideration as an object, how many times was this particular piece of pen originally created? This one piece of pen. Okay, Shefali says one because I can see her video. बाकियों का क्या कहना है? Once only. Once only. Wonderful. Great. और कोई जवाब? The finished product is once, but Finished जिस product is तरीके से ये बना है एटलीस्ट बेचारा 2-3 बार तो हुआ ही है. Okay. Table. What? Okay. Table you're talking about. हाँ जी. और कोई जवाब? Once only. Once only. Okay. Very good. So I will take the reference of this pen, considering हम आपके ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, आप जिस भी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं. आप कह रहे हैं ये पेन एक बार ही बना था. Okay. Any reasons why you say ये पेन एक ही बार ही बना था? It's our assumption. It's a pen. It's a single object. Assumption. Okay. Okay. Any other reason? ये जो पेन है इसके जो फीचर्स हैं ये तो एक ही बार बना, बाकी जो बना वो अलग बना होगा, डिफरेंट बना होगा, सो कॉपी बना होगा. कॉपी बना होगा. इंटरेस्टिंग. ग्रेट. सो जो मीतू और शिफाली ने बेसिस दिया, बाकी सबका एक कहने का भी सेम बेसिस है और सम अदर रीजन दैट यू सेड इट वाज मेड वंस. Yeah, same here. सेम लॉजिक. ठीक है. Uh-huh. Okay, chalo. So let's see if this pen was made once or more than once. Let's look at it from the perspective of इसको बनाने वाले ने इसको कैसे बनाया होगा. तो ये एक बार ही तो बना, okay, fine. But बना कैसे exactly? मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से बनी होगी? शुरुआत कहाँ से हुई होगी? Evolution Ideas. of ideas. Ideas. Okay, great. And then what would have happened to the idea? Utility imply करके देखा होगा और Implementation. Okay, idea got implemented. मतलब idea यहाँ पर और implementation मतलब ये. So यहाँ से directly ये. But बीच में शायद कुछ तो होगा. Manufacturing. मैंने okay. So अच्छा मान लो आपको ये पेन बनवाना है और
आपको ऐसा कोई पेन बनवाना है, मान लो आपको अपना कोई कस्टमाइज्ड पेन बनवाना है, ठीक है, अपने लिए या किसी को गिफ्ट करने के लिए, आप डेफिनेटली किसी के पास मैन्युफैक्चर करवाने के लिए जाओगे, तो आप उसको क्या बोलोगे एग्जैक्टली कि एक पेन बना दो जो ब्लैक कलर का हो और उस पे सिल्वर ऐसी हो, उस पे ये लिखा हो और बस। मटेरियल लाके तो वही देगा ना जो पहले तो आप ये बोल रहे हो कि पहले वो हमारे दिमाग में बना, फीचर हुआ, फिर हमने जाके उसको बताया, उसके दिमाग में फीचर हुआ, फिर उसने एग्जैक्ट बनाया। तो ये पेन 3 बार बना। वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। आपने काइंड ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जर्नी के थ्रू हमको ले गए। ओके, सो इफ यू जस्ट लुक एट इट, yes, it was created as an idea in your mind first, definitely. So can I say आपके दिमाग में एक ब्लूप्रिंट बना इसका? हाँ बिल्कुल। उसी ब्लूप्रिंट को आपने या किसी और ने पेपर पे उतारा होगा। ओके है। जो डिजाइनर है वही उतार सकता है, मतलब हमको ब्लूप्रिंट नहीं बनाना आता, इट इज ओके, बट जिसको आता है बनाना वो तो बना ही सकता है, राइट? तो वो एक ब्लूप्रिंट बना। तो जो फाइनल मैन्युफैक्चरिंग हुई वो किसके बेसिस पर हुई? बीच वाले ने जो बना के दिया ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट, राइट? हाँ। तो ये पेन कितनी बारी बना? 3 बार। Okay, so आप 3 बारी कह सकते हो, but actually it got created twice. First, the blueprint got created in your mind. The same blueprint must have got created. Mind में change हुआ तो बाहर भी change हो गया. It must have got created outside. और उसी blueprint का replication ये पेन होगा, क्योंकि मशीन को तो और कुछ नहीं समझ आता। मतलब हम उसको बोल दें कि भाई तुम इसका ये बदल दो, इसको मोटा कर दो, इसको पतला कर दो, मशीन तो नहीं करेगी। मशीन तो ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपने उसको जो दिया है वो उसका आउटपुट दे देगी। दिस इज द वे मशीन्स वर्क, लाइक अ कंप्यूटर्स डू, राइट? वी पुट अ कोड एंड हम उस पे इनपुट डालते हैं, वो आउटपुट दे देती है। इट्स अबाउट आइडियलाइजेशन दैट यू आर ट्राइंग टू से कि आइडिया एवोल्यूट हुआ और उसको आपने किसी के साथ शेयर किया। हाँ, exactly. Non-physical form. So what we are talking about, the idea, we actually had not just an idea, but we created a map of that idea in our own mind. जैसे किसी ने बोला ना कि आपने बोला मीतू कि आई वांट हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माय फैमिली, श्योरली यू मस्ट बी सीन कि आपकी फैमिली हैप्पी और पीसफुल कैसे लगती है, राइट? शिफाली टॉक्ड अबाउट हर ड्रीम्स, सो शी मस्ट बी सीन कि मेरा ड्रीम कैसे लगता है। सो कहीं ना कहीं वो प्लान तो अंदर ही क्रिएट हुआ पहले, तभी तो शिफाली और आप या कोई और भी उसके ऊपर वर्क करेगा बाहर। इफ देयर इज नॉट इनसाइड, हाउ कैन वी वर्क ऑन इट आउटसाइड? मेक सेंस? ओके, so can I say, okay, just a second, yeah, can I say that every product, every creation has a blueprint? हर चीज का पहले एक ब्लूप्रिंट होता है, उसी ब्लूप्रिंट के बेसिस पर वो प्रोडक्ट एक रियल फॉर्म लेता है, राइट? इट्स अ लॉजिकल थिंग। अभी इसमें हम किसी और चीज की बात नहीं कर रहे हैं। डज इट सीम वैलिड? या इट इज। Okay, ठीक है. These points that we're talking about, we're going to draw some inferences from that. I'm just setting the base right now for it. Okay? Seems very simple कि हाँ हर product का blueprint तो होता है, but we'll go ahead with why are we even talking about it, right? Okay. So every product, every creation has a blueprint. Everything which you see in the physical world like a product will have a blueprint. We have agreed to it. Okay. Now, for a second, if I were to assume my life as a product, let's say I assume life as a product. क्रिएशन है किसी ना किसी तरीके की, सो मैं इसको प्रोडक्ट मान के चलते हैं, अभी कुछ सेकंड के लिए अज्यूम कर लेते हैं, ओके, कि अगर मेरी लाइफ प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट, व्हाई एम आई टेकिंग द एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट ओवर हियर इज बिकॉज everybody's life is different. Biologically, as a human being, हम सब देखने में ऊपर ऊपर से सेम लगते हैं, but deep down, nitty gritties, DNA, organ work, organ function तो एक ही होगा obviously, but organ health और ये छोटी छोटी चीजें जो हमें नजर आती है बिल्कुल अलग है। हमारा पूरा लाइफ सबका डिफरेंट है। हम कह सकते हैं कि किसी एक इंसान का लाइफ दूसरे इंसान से मैच करता है? नॉट एट ऑल। इवन एक पेरेंट और चाइल्ड का भी नहीं करेगा, एक ब्रदर सिस्टर या घर वालों का भी नहीं करेगा, बिकॉज इंडिविजुअली वी ऑल हैव डिफरेंट लाइफ ऑल टुगेदर, राइट? सो दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग लाइफ एज अ प्रोडक्ट राइट नाउ।
I hope that analogy goes well for some time. Let's assume it works. Yeah. Okay. Now, if life is a product, do we think it was created randomly, or life also had a blueprint, or it has a blueprint? How many of you say that it has a blueprint? And how many of you say it is random? You can either type or you can share via audio. अगर mythology बेस करेंगे तो it's a combination of blueprint and randomness. So अभी हम इस एनालॉजी को लेके चलते हैं कि हम इसको एज अ प्रोडक्ट मान के चल रहे हैं अभी लाइफ को. And I'll come to the reason why are we considering it, because we are going to build further on this. So even if अगर अभी हम disagree करते हैं, it is completely fine, no worries with that. So yeah, coming back to it, क्या लगता है ब्लूप्रिंट है इसका, कोई मैप है या रैंडम है, कहीं भी कुछ भी हो जाता है, कोई लॉजिक ही नहीं है? ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट है. ओके, सो 2 लोग ब्लूप्रिंट को वोट देते हैं. ग्रेट. बाकी लोग क्या कहते हैं? ब्लूप्रिंट है. ब्लूप्रिंट है. 3 फॉर ब्लूप्रिंट. वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, ब्लूप्रिंट है. ब्लूप्रिंट है. ओके, great. I think since Prachi is traveling, she may not be able to share. No worries. Wonderful. Everybody spoken that life has a blueprint. I thought कुछ लोग तो बोलेंगे चलो random है. Okay, interesting. So we know that life is a blueprint. You guys say that. तो blueprint का designer भी होगा कोई ना कोई. किसी ने तो design किया होगा blueprint. It cannot just exist. Somebody must have designed it. So who's the designer of this blueprint of my life? I mean, my life matlab your life. Okay, Shefali says me. Yes. That is designed by us and by our own karmas. You and your own karmas. Interesting. Okay, so I 2 votes. Okay, any other answers or even similars? Designer of life. It's a similar. It would be a mix because many things we don't choose, but many things we can change. So Okay, so Meetu, you say that कुछ चीजें हमारे हाथ में और कुछ चीजें में हमने डिजाइन नहीं किया, वो बाय डिफॉल्ट थी. हाँ हाँ, वो अगर अपन पास्ट लाइफ लेके चलेंगे दैट्स डिफरेंट, बट यस कुछ चीजें हमारे हाथ में हैं फॉर ये श्योर. तो एक तरफ डिसीजन रखना, पॉलिटिक्स को खेल रही है. because who would want to be in a situation of a fix? Nobody. लेकिन Yep. पड़ जाते हो चाहे आप जितनी कोशिश करो. हम्म. So that's why I say it's a mix. तो आप ये कहना चाह रहे हो कि अच्छी चीजें तो हम डिजाइन करते हैं, लेकिन हम अपने लिए बुरी चीजें डिजाइन नहीं करते हैं या अनवांटेड नहीं. चीजें डिजाइन नहीं करते. मैंने बोला ना माइथोलॉजिकली अगर देखा जाए, जैसे श्रीमी ने भी पॉइंट आउट किया यार कर्मस, तो कर्मस. कर्म बहुत बड़ा प्ले करता है रोल. हाँ. लेकिन कहते नहीं कि अगर कर्म को कर्तव्य से आप ढकने की कोशिश करो तो कर्म घटता भी है. सो इट इज अ मिक्स मैन, इट इज नथिंग इंडिविजुअलिस्टिक मेरे हिसाब से. ओके ओके, ठीक है. So okay, fine. So 2 people say that mix है. Shrimi talks about I and karma, which I understand as a sole responsibility, मतलब individual responsibility. Shefali also says I. Okay, great. तो अब आते हैं अगले सवालों पर, क्योंकि मैंने कहा था पहले ही कि सवाल बहुत सारे होंगे. So the next question is, yeah, just a second. Sorry. Okay. So the next question is, we know that life has a blueprint. We know that I am the designer of the life. We know that. पूरा नहीं करते but चलो कुछ तो मानते ही हम लोग. Okay. How many of us believe that I am the designer of this blueprint of my life? Now these are 2 different words. And if they are 2 words, they have 2 meanings. I certainly believe, but yes, कभी-कभी distract भी होते हैं. फिर से ट्रैक पे आना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि continuous 100% सेम रहता है कि हाँ मैं बिलीव कर रही हूँ. फिर अपने आप को मोटिवेट करके फिर यकीन दिलाना पड़ता है. Yes, I can.
I mean, I am the one who's responsible for everything, and Yes. I'll have to make everything on time. So you are saying that बारी बारी याद दिलाना पड़ता है और बारी बारी बिलीव कराना पड़ता है. हाँ मैं ही हूँ. Correct. I am the one. I am the one. Like Correct. बच्चे को सिखाते हैं ना कि ऐसे ही होता है, ये ऐसे ही होता है, वो वाली चीज. हाँ, कभी Good. कभी खुद ही दूसरों को बताते हैं, बट अगेन फिर वही क्वेश्चन खुद करते कि ऐसा क्यों हो रहा है. बट आई मीन समटाइम्स वी टीच अदर्स कि ऐसा होता है, एंड खुद ही की बारी आती है तो फिर वो याद नहीं रहता कभी Absolutely correct. सिचुएशन को. Correct. Okay. I'm glad you were honest with the reply. It is very important actually because change बिना चीज को सही तरीके से परखे तो वैसे भी नहीं कर सकते हैं. So thank you Shrimi for sharing. Okay. Okay. So coming to other participants, what do you believe कि भाई ये आप जानते हो या इसमें 100% मानते हो? 100% माना 100%. आई थिंक मैं जानते हो वाले कैटेगरी में आऊंगी. Okay, great, good. This self evaluation I will share later कि क्यों मैंने इनको अलग किया है and how this thing actually came up. Okay, so Meetu says nose. शिफाली, डिजाइनर हूँ ब्लूप्रिंट का, मैं जानती हूँ या मैं मानती हूँ? अब तो जानती भी हूँ मानती भी हूँ, पहले दोनों में थे. वाह, very nice. That's a good progress. Okay, निधि, what do you feel? जानती हूँ. आप जानते हो. ओके, ठीक है. और कौन है हमारे साथ में? ओके, ठीक है. सो हम जानते हैं, मोस्ट ऑफ अस. कुछ कह रहे हैं हम कभी कभी मानते मानते मतलब भूल जाते हैं, फिर मनाते हैं अपने आप को कि मान लो ये इम्पोर्टेंट है मेरे लिए मानना. और शिवाली कहते हैं कि जानती भी मानती भी. वेरी गुड. अब आते हैं अगली बात पर. हाउ मेनी ऑफ अस लिव बाय इट? मेरा आंसर सेम ही रहेगा यहाँ पे भी. हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि आपने ऑलरेडी सेकंड पॉइंट पे क्लैरिफाई कर दिया था, इसलिए. राइट. आई एम स्ट्रगलिंग थॉरली. नो से बिलीव जाने में और फिर बिलीव से लिव करने में. इज दैट व्हाट यू आर सेइंग नीतू? या ऑब्वियसली, बिकॉज पहले बोलना चाहिए ना कि अभी मुझे ग्रुप में सुन के ऐसे लग रहा है जैसे प्रोबेबली आई एम नॉट बीइंग दैट मैच्योर एज पर द लाइफ दैट आई शुड बी. बट हाँ, दिस इज माय स्टेज दैट मैं को अपने आप को स्टेप बाय स्टेप लेके जाना पड़ता है. वो हर एक के साथ ऐसे होएगा. दैट इज यूनिवर्सल. I have never seen somebody taking a high jump from knowing to directly living. Believing की स्टेज हमेशा आएगी आएगी बीच में. अब किसी के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम तक चलती है, वो किसी के लिए कम में हो जाता है. इट इज डिफरेंट, बट ऑब्वियसली इट्स अ स्टेज, सो वी हैव टू क्रॉस इट. ओके, नाउ अगर अभी भी हमें कुछ इसमें डाउट है कि व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट नोइंग, बिलीविंग एंड लिविंग, नो इज जानना. यहाँ पर बिलीव मतलब वो आपके डीएनए में, आपके हार्ट में इतना इम्बेडेड है, इतना डीपली घुसा हुआ है, आप उसी मान्यता और बिलीफ के हिसाब से काम करते हो. जैसे होता है ना हमारे घर में कई बारी कि सैटरडे को नेल्स नहीं काटने, सैटरडे को या बाल नहीं कटवाने या शेव नहीं बनानी है, नहीं तो कुछ ना कुछ हो जाएगा. वो बिलीव्स इतनी डीप डाउन एम्बेडेड है कि वो काम करेंगे ही नहीं. वो बिलीव्स उनको वो काम करने से रोकती हैं, इवन इफ अगर उन्हें पता होगा कि उन्हें वो काम करना चाहिए. जैसे आई रिमेम्बर I was just going through an audit in my previous organization of my employees. तो हम लोग उनकी यूनिफॉर्म ऑडिट और उनकी अपीयरेंस ऑडिट भी करते थे. तो एक बार I happened to see somebody with two grown up shave. तो I just asked, मैंने कहा क्या हुआ, is everything okay? भाई इतनी तो जनरली होती नहीं है कभी भी. और then this guy was wearing a small, वो होता है ना बाली पहनते हैं कान के अंदर, तो वो बाली पहन के रखी थी स्टड टाइप का वो. And I'm like looking at him. He's a educated person and he has done his studies and then he's here in the organization, and he told me कि ये ना मेरे फैमिली में ऐसा कल्चर है कि ये पहन के रखना होता है. and I'm like okay, so I could only share whatever I could share. I could not go on to his beliefs because वो आप फिर एक के साथ नहीं कर सकते, वो आपको सबके साथ करनी होती है. but this is how our beliefs influence our life, right? So अभी हम बात कर रहे हैं कि हम ये जानते हैं करना चाहिए, बट अभी इसके और इसके बीच में थोड़ा फासला है.
जब ये और ये अलाइन हो जाएगा तब फिर हम इससे इस पर आएंगे. And perhaps that is the reason why most of us know a lot of things which is stored in this part of our body or our heads, लेकिन जर्नी सारी उसको यहाँ से यहाँ तक लाने की है. I hope that makes sense to everybody. आप बहुत कुछ जानते होंगे जो हम इस जर्नी में शेयर करेंगे. आप बहुत कुछ जानते होंगे, ऐसा नहीं है. हाँ, कुछ चीजें हो सकती है जो आपके लिए नहीं हो, बट बहुत कुछ आप ऑलरेडी जानते हो. हमारा मकसद इससे इस तक आने की बात है, क्योंकि यहाँ पर ही ट्रांसफॉर्मेशन होती है, यहाँ पर ही न्यू क्रिएशन होती है. राइट? ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड. सो ग्रेट, वी हैव डिकोडेड. ओके, where were we? Yeah, just a second. Okay, so now we have looked at this understanding of life as a product. लेकिन लाइफ कोई बेजान चीज तो है नहीं. इट इज लाइफ आफ्टर ऑल. मतलब इसमें लाइवलीनेस है, तभी उसको हम लाइफ कहते हैं. जिंदा है ना, बिकॉज इट इज बीइंग रन बाय समबडी हु इज अलाइव. सो हम इसको एक प्रोडक्ट से ना कंपेयर करते हुए वी आर नॉट गोइंग टू शिफ्ट आवर एनोलॉजी टू दैट. अगर मेरी लाइफ को मैं एक पेड़ के जैसे देखूं तो लाइफ कैसे दिखेगी. वाई अ ट्री एम आई टॉकिंग अबाउट इज बिकॉज अब देखो, पेड़ कहीं ना कहीं लाइफ को रिप्रेजेंट करता है. इतने से इतना बड़ा हो जाता है. हमारी लाइफ भी बहुत छोटे से मोमेंट से स्टार्ट होती है और वो एकदम एक्सपैंड 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 होती है. ट्री को भी सीजन्स क्रॉस करने होते हैं, हमारी लाइफ में भी सीजन्स होते हैं. ट्री में भी अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं. फूल, पत्ते, ब्रांचेस, ट्रंक, रूट, सीड्स, फ्रूट्स. हमारी लाइफ में भी अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े ऑल टुगेदर. Abhi, what we are going to do is, we are going to look at our life from the perspective how my life looks like as a tree. So we're going to go through a journey of tree of life. So हम क्या करेंगे, मैं आपको एक छोटी सी एक कंपेरेटिव विजुअलाइजेशन में लेकर जाऊंगी जहां पर हम अपनी लाइफ को एज अ ट्री विजुअलाइज करेंगे. आपको बस मेरे साथ साथ उसको देखते जाना है. आपकी लाइफ का ये पेड़ कैसा नजर आता है. ठीक है? वर्क्स? Should we start? I mean, Yes, shall we? yes. Okay, great. Meetu is a spot. I'm sorry, I have to be on mute, but yes, I'm there. No. That I got it because you're participating, so I know that you are there. Okay, so let's start. Sit back comfortably. आराम से बैठ जाएं और आप अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं कुछ देर के लिए. Just close your eyes. Take a deep breath, गहरी सांस लें and release. और अभी अपने सामने देखें, आपके सामने एक बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत बड़ा सा पेड़. देखें, इस पेड़ के फ्रूट्स हैं लटके हुए, पत्तियां हैं, लीव्स हैं, टहनियाँ भी हैं, ब्रांचेस. पेड़ का तना, द ट्रंक ऑफ ट्री. पेड़ की रूट्स, जड़ें नजर नहीं आती लेकिन हमें पता है. और एक बीज पेड़ का जो कि रूट्स के नीचे छुपा हुआ है. अब इमेजिन करें कि ये जो पेड़ है ये आपकी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है. अपना ध्यान लेकर जाएं, टेक योर अटेंशन ऑन द फ्रूट्स ऑफ द ट्री, पेड़ के फ्रूट्स पर, एंड सी कि आपकी लाइफ में ये फ्रूट्स क्या मायने रखते हैं. यहाँ पर फ्रूट्स आपकी लाइफ में क्या क्या रिजल्ट्स हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं. All the results you have got in your life, good, bad, desirable, undesirable, कैसे नजर आ रहे हैं आपको ये फ्रूट्स. खट्टे हैं, मीठे हैं, कड़वे हैं, छोटे, बड़े, सुंदर, रॉटन.
अपनी लाइफ के सभी फ्रूट्स को देखते जाएं। एक क्विक ग्लैंस, एक क्विक नजर घुमाएं ऊपर। अब देखें इस पेड़ की पत्तियों को। ये पेड़ की पत्तियां आपकी लाइफ के रिलेशनशिप्स को, लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं। आपकी लाइफ में कौन कौन लोग हैं, कब से हैं, किन सीजन्स में आपके साथ रहे हैं, किन सीजन्स में गए हैं, कितने हेल्दी हैं, ग्रीन या पेल। देखते जाएं छोटे बड़े सभी पत्तियों को, सभी रिलेशनशिप्स को जो आपकी लाइफ में है। Now bring your attention to the branches of the tree. इस पेड़ की ब्रांचेस पर अपना अटेंशन लेकर आए। ये ब्रांचेस आपकी लाइफ के जिन पाथ्स को, जिन रास्तों को आपने चुना है अपनी लाइफ में, मेजर रास्ते, उनको रिप्रेजेंट करती हैं। छोटी टहनियाँ छोटे रास्तों को, बड़ी ब्रांचेस मेजर बड़े रास्तों को। करियर का पाथ, आपकी लाइफ के डिसीजंस का पाथ, आपके लाइफस्टाइल का पाथ, कैसे आपको अपनी लाइफ स्पेंड करनी है उसका रास्ता, किन प्रिंसिपल्स पर लाइफ चलनी है उसका रास्ता। कौन सी ब्रांचेस आपकी लाइफ में आपको नजर आती हैं, देखिए उसको। अब ब्रिंग योर अटेंशन टू द ट्रंक ऑफ द ट्री, पेड़ के तने को। ये पेड़ का तना आपकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। पेड़ का तना उसको अनशेकेबल रखता है, स्ट्रॉन्ग रखता है, उसको गिरने से बचाता है। आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं जो आपको अनशेकेबल बनाती हैं? और आपकी लाइफ का ये ट्रंक कितना मजबूत है, पतला है, मोटा है, या बैनियन ट्री जितना बहुत मजबूत है, अनशेकेबल, अनमूवेबल है, कि कोई भी सीजन, कोई भी सिचुएशन इसको हिला नहीं सकती। नाउ ब्रिंग योर अटेंशन टू द रूट्स। नजर नहीं आती, लेकिन ये रूट्स आपकी लाइफ की वैल्यूज को, आपकी कोर बिलीव्स को, आपके कोर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। क्या बिलीव्स हैं आपकी लाइफ में? कैसी रूट्स हैं आपकी लाइफ के ट्री की? हेल्दी, पतली, मोटी, ग्राउंडेड हैं या ऊपर ऊपर तक हैं? कौन सी बिलीव्स हेल्दी हैं और कौन सी बिलीव्स अनहेल्दी हैं? हैव अ लुक एट ऑल ऑफ देम। एंड नाउ कम टू द सीड ऑफ द ट्री। पेड़ के बीज पर आ जाए। आपकी लाइफ पे बीज कौन है? Who is the seed of your life's tree? Every tree has a seed. आपकी लाइफ का सीड कौन है? देखें उसको। ये सीड कैसा है? ऑब्जर्व करें। हेल्दी है, अनहेल्दी है, कितना हेल्दी है, और इस सीड से पूरे पेड़ को क्या क्या जा रहा है? आपकी लाइफ के सीड से पूरे ट्री को क्या क्या जा रहा है? जस्ट ऑब्जर्व इट। एंड हाउ इज इट इम्पैक्टिंग द एंटायर ट्री? एंड gradually come back, come back, come back. You can all open your eyes if you had closed them. Okay. So now you are back और आपने अपनी लाइफ को एज ए ट्री ऑब्जर्व किया।
कितने लोग कर पाए लाइफ एज अ ट्री? मैं कर पाई। Okay, great. Okay. So, इस पूरी एक्सरसाइज में आपकी क्या रिफ्लेक्शंस रही हैं? कुछ इंसाइट्स आई लाइफ को अपने सामने देखने पर, पेड़ की तरह देखने पर? इनफैक्ट जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे सब पॉजिटिव पॉजिटिव ही लग रहा था। हम्म, फिर एक बार बीच में मेरे ख्याल भी आया कि सिर्फ लाइफ इतना स्मूथ है कि सब पॉजिटिव ही लग रहा है, पर पूरा एंड हो गया। फिर भी मुझे पॉजिटिव ही लगा, कुछ नेगेटिव लगा नहीं मुझे उसमें। ब्यूटीफुल, ग्रेट। तो इसके दो रीजन हो सकते हैं। एक्चुअली या तो आपका पेड़ पूरा भरपूर हरा भरा है या फिर थोड़ा पेड़ को और करीबी से देखने की जरूरत हो सकती है। सो यू विल इवेंचुअली गेट टू नो दैट, राइट? ओके, ग्रेट। और क्या रिफ्लेक्शंस रहे इस पूरी एक्सरसाइज के दौरान में? इस समय तो सेल्फ लव में हूँ तो रेड हार्ट ही दिखता है पूरी बॉडी में। सेल्फ लव, ओके, ग्रेट, वंडरफुल। सो सेल्फ लव नजर आ रहा है, ये आज का असर है, गुड। और I realized it's a good healthy tree, but वो ये कि उसको पेड़ की तरह देख के समझ में अच्छा लग रहा था, बट जब अपनी डे टू डे लाइफ में देखो तो काफी डिफरेंट लगता है। हाँ हाँ, तो वो इसलिए क्योंकि जब हम अभी ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव अ लिमिटेशन ऑफ टाइम, हम उसकी डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। इसको आप अपने साथ अकेले में कर सकते हैं और डेप्थ में जा सकते हैं जितना आप जाना चाहो, बट वापस आ जाना प्लीज, खो मत जाना। नहीं, ओके, इजी एनालॉजी है एक्चुअली, रात को भी सोने से पहले कर सोच सकते के हैं। कर सकते हैं। हाँ, अब इसके मीट पर आते हैं, मतलब क्रक्स पर आते हैं। अच्छा, इस पेड़ का, आपकी लाइफ की पेड़ के सीड कौन है? सीड कौन है मेरा? माय फाउंडेशन इज माय पेरेंट्स ओनली। सो यू से फाउंडेशन। नाउ फाउंडेशन में रूट्स भी होती है, हम बात सीड की कर रहे हैं यहाँ पर अभी। सीड कौन है, बीज कौन है लाइफ का आपकी? हमारे दैट इज कर्म, मी माय सेल्फ। You yourself. Okay, Nidhi, you were saying something. हमारे कर्म। कर्म, great. I guess अच्छा, पहले श्री ने तो बोला था, अभी निधि कर्म की बात कर रही है। इंटरेस्टिंग। ओके जी। तो हमारी खुद की आत्मा, क्योंकि आई मीन दैट इज द ओनली लाइफ व्हिच वी हैव, और वही सीड है, उसी से सब कुछ, मोह माया परिवार सब कुछ वहीं से आता है। ये मेरी Okay. मिस Okay, so you're talking that the soul is the seed. Interesting. कर Okay. I think शोभा जी, आप कुछ बोल रहे थे शायद। सोल संकल्प शक्ति। सोल संकल्प शक्ति, थॉट सीड है। ब्यूटिफुल, ग्रेट। So wonderful that we were all able to look at something. शिफाली, what do you think? Seed, आपकी लाइफ का सीड कौन है? डिवाइन सोल। Divine soul is the seed of your life. Interesting, great. Okay, so now let's have a look at this tree a bit deeper. हर पेड़ का एक बीज होता है, राइट? हर पेड़ का एक अलग बीज होता है। कभी भी दो पेड़ का एक बीज नहीं होएगा। हाँ, ये हो सकता है कि एक का फ्रूट निकले और उस फ्रूट का जो बीज है वो दूसरा पेड़ बन जाए, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एवरी ट्री हैज इट्स ओन यूनिक बीज. It is never ever shared, or it is never ever, same for everyone. So one thing that we really need to ask ourselves is, मेरी लाइफ का सीड कौन है? इस पेड़ का सब कुछ करता धरता कौन है? बीज है। We agree to that? बीज है, पेड़ का करता धरता बीज है। बीज से ही सब कुछ होएगा ना, and we know that, scientifically we know that, right? मेरी लाइफ का करता धरता कौन है? मैं खुद। ओके, और कोई? अभी तो मैं डिपेंड हूँ, अभी तो मैं डिपेंड तो मैं बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है दूसरों पे डिपेंड हूँ। हाँ, बट अदरवाइज अगर एक वो सिचुएशन बेसिस पर हमें ऐसा लगता है कभी कभी किसी सिनेरियो में, स्पेशली विद एज ऑल्सो दैट हैपेंस, एज के साथ में हमको लगता है कि हम अपनी इंडिपेंडेंस खो देते हैं या शिफ्ट हो जाती है। बट अदरवाइज अगर हम बात करें, एक इंडिविजुअल की लाइफ का करता धरता कौन होता है?
हम खुद ही होते हैं, हमारे कर्म तो कर्म भी मुझसे ही आ रहे हैं ना, मतलब मैं हूं तो कर्म है, मैं ही नहीं हूं तो मेरे कर्म कहाँ से हुए, राइट? सो आर वी सेइंग दैट आई एम द सीड ऑफ माई लाइफ ट्री? आई एम आस्किंग. Yes, I think yes. Okay. Okay. नीतू, agreed? पता था। हाँ, sorry. यस यस या हाँ Okay, इट्स मी। very good. ठीक है. So नीतू कह रही है हाँ, I believe that I am the seed of my life tree. Now, if we look at this in the broader aspect, पेड़ का सब कुछ उसके बीज में होता है, एंड वी नो दैट, क्योंकि बीज में ही उसका ब्लूप्रिंट होता है, मतलब जैसा बीज है वैसा पेड़ होगा. यस. बिल्कुल. ओके. सो अगर हम उस बिल्कुल की बात कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये है दैट इफ आई एम द सीड एज आई एम, सो इज माई लाइफ? बिल्कुल. यस ऑफ कोर्स. Interesting. Definitely, to an extent, we all know this, but let's go further now to on the same thought. Like I said, ऐसा नहीं कि कुछ हम बहुत कुछ नया ऐसा कुछ हम करने वाले हैं, बट बहुत चीजों को हम डिकोड करने वाले हैं. तो अब सवाल ये है कि अगर आपके सामने आपकी लाइफ का पेड़ और आपको उसको हेल्दी बनाना है, नर्चर्ड, ब्यूटीफुल, फ्रूटफुल, सब भरा भरपूर, अच्छा, ऑल ऑफ, जैसा दिल चाहा पेड़ आपको बनाना है, आप बना सकते हो. आप किस लेवल पे फोकस करेंगे? थॉट्स. मेहनत करनी पड़ेगी तभी वो. थॉट्स पे Especially, फोकस करें. ओके, थॉट्स पे फोकस करेंगे. निधि, आप कह रहे हो अपने पे मेहनत करनी पड़ेगी तभी होगा? नहीं, निधि बोल मैं रही क्या- थॉट्स पे. ओके, ठीक है, दो लोग साथ में बोल रहे थे, तो आई थिंक आई मस्ट हैव कंफ्यूज्ड बोथ द वॉइसेस. इसको ओके, पानी, धूप, हवा सब बहुत अच्छा एब्सोल्युटली, चाहिए. वो तो देना ही पड़ेगा, बट लाइक यू आर ऑल सेइंग कि फोकस सीड पे करना पड़ेगा, मतलब खुद पे करना पड़ेगा. नाउ वी नो दैट आई एम द सीड ऑफ माई लाइफ, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपने अभी कहा है, लुकिंग एट योर लाइफ ट्री. अब हम इसकी लास्ट आज के हैमरिंग पॉइंट पर जा रहे हैं, विच इज दैट 1 मिनट के लिए ना आप इस थॉट के साथ बैठ जाओ, बस आंखें बंद करके. आई एम द सीड ऑफ माई लाइफ. और जरा इस थॉट को अपने अंदर जाने दो, एंड जस्ट फील, जैसे ये थॉट आपके अंदर जाता है तो क्या इमोशंस या क्या थॉट्स आते हैं, क्या उभर के आता है. सिट विद योर सेल्फ फॉर 1 minute, लेट दिस थॉट गो इन साइड यू एंड चेक अंदर क्या हो रहा है व्हेन दिस थॉट इज कमिंग अप. आई एम द सीड ऑफ माई लाइफ. As I am, so is my life. What I have in me is in my life because I am the seed of my life. Okay, gradually, with this thought, just come back. वापस आ जाएं इस थॉट के साथ में. Okay. So, when you took this thought inside of you, क्या लगा, क्या इमोशंस, क्या फीलिंग्स थे? A little more powerful but a little sad. Why powerful and why sad? पावरफुल मतलब कि
I can handle, I have to manage, I can make it better. I'm sad कि already I knew it, but still I am trying to find outer reasons to point out कि ऐसा है इसलिए मेरे साथ ऐसा है, ऐसा इसलिए मैं ऐसी. So not so good. So you are saying अंदर जैसे कुछ हिल गया in a way. हिल गया नहीं, but हाँ, yes. स्टरिंग होती है ना, मिक्स करते हैं तो कुछ कुछ चीजें पहले लगता है कि अच्छा सब है, सेटल है. churning, हाँ, वो जो Stirring, आत्ममंथन जिसको बोलेंगे. Okay, okay, great. ठीक है. Yes, Shrimi, would you like to share? Yeah, so my experience was little different. So when I initially started, मुझे ऐसा लग रहा था कि अच्छा thought से we can create everything. तो अगर मैं thought create कर सकती हूँ तो things are under control. So मैं control कर सकती हूँ, ऐसा लग रहा था मुझे. Wonderful, great, great. Okay, शोभा जी. क्या बोलूं, मुझे रोना अब आ रहा है बहुत ज्यादा. मतलब कि मैं बिल्कुल शब्द नहीं. Nidhi, anything from your end? एक पॉइंट पे लगता है कि आई कैन कंट्रोल द थिंग्स, आई कैन मेक चेंजेस. सडनली बहुत एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से चीजें बहुत chaos और messed up फील होती हैं. So, you know, it is, and you see, this is one thing common across everybody. जब मैं ये एक्सरसाइज कर रही थी कुछ दिन पहले अपने साथ में, तो आई न्यू कि अच्छा ये बिलीफ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, इसको मुझे अपने अंदर उतारना बहुत जरूरी है डेफिनेटली, बट एक एक्सटेंट कि इसी बिलीफ से बस लाइफ चले, बिकॉज आई न्यू व्हाट दिस बिलीफ कैन डू टू मी. सो दिस वन बिलीफ एंड अनदर बिलीफ. So while I was doing this particular exercise, and the moment ये जैसे अंदर चली गई, I had an aha moment, and I'm like, if I am the seed of my life, तो मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है उसकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, क्योंकि मेरे लाइफ के पेड़ से सब कुछ मुझसे ही तो जा रहा है. पेड़ में अपने आप तो कुछ भी नहीं है. हाँ, डेफिनेटली क्या उसको धूप मिलेगी, क्या उसको पानी मिलेगा, किस सॉइल में वो है, और जैसे निधि ने कहा एक्सटर्नल फैक्टर्स दे डेफिनेटली मैटर. बट एक कहावत है, वो कहावत ये कहती है कि हर बीज अपनी धरनी खुद चुनता है. हर बीज अपनी धरनी, अपनी धूप, अपना पानी खुद चुनता है. क्यों ऐसा कहा जाता है उस पे हम आगे कॉन्टेम्पलेट करेंगे. बट आज लाइक यू मेंशन, यू नो, कि आपने कहीं ना कहीं कंट्रोल और पावर महसूस करी. अगर मैं सीड हूं तो इट इज अबाउट मी, क्योंकि इतनी सारी चीजों को तो मुझे कंट्रोल करना ही नहीं है और वो मेरे हाथ में भी नहीं होंगी. ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट टेक चार्ज ऑफ वन थिंग, विच इज दैट वन सीड विच इज मी. बट अगेन लाइक वी सेड, ये जर्नी नोइंग से बिलीविंग और बिलीविंग से लिविंग तक की है. इट विल नॉट हैपन कि आज कुछ हुआ और एकदम से हम लिविंग पर आ जाएंगे, हम बिलीविंग तक जाएंगे, राइट. सो टेकिंग रेफरेंसेस ऑफ आपने जो भी एक्सपीरियंसेस शेयर करे, एंड यस यू मस्ट हैव फेल्ट अ लिटिल बिट, किसी ने बोला सैड ऑल्सो, कि अगर सब कुछ मेरे हाथ में है तो व्हाई नॉट देन, यू नो, मैं क्यों नहीं फिर चार्ज ले रही हूँ. वो आती है वो फीलिंग, बट दैट इज हैपनिंग क्योंकि अंदर कुछ खुल रहा है. जैसे नीतू ने कहा आत्ममंथन, अंदर कुछ चर्निंग हो रही है, कुछ ना कुछ अंदर स्टरिंग हो रही है जो अभी तक बंद था. बहुत कुछ हिलेगा और वो हिलना जरूरी है. जब तक हिलेगा नहीं, जब तक लैंड अगर बैरन है तो आप बीज अंदर बो ही नहीं सकते हो. पहले खुदाई, तो ये वो खुदाई वाला फेज भी है इन अ वे. हम खुदाई करेंगे और धीरे धीरे ऐसे ऐसे बीजों को अंदर लेकर जाएंगे और फिर उसमें से जो भी आपका डिजायर्ड फल, फ्रूट, पेड़ जो भी है वो हम क्रिएट कर लेंगे, राइट. So with this one thought, I am the seed of my life. We are going to close the session today. Exercise हमारी ये रहेगी कि ग्रुप में तो I will be sharing इस thought के अराउंड डेली असाइनमेंट्स, क्योंकि हमें जर्नी ट्रैवल करनी है तो डेली छोटा छोटा काम करना होगा, उसको पानी देना होगा, इस बीज को भी पानी देना होगा, थॉट के बीज को.
तो अभी द एक्सरसाइज इज टेक दिस थॉट विद यू और इस पे जरा कॉन्टेम्पलेट करना. यू नो दैट यू आर द सीड. कॉन्टेम्पलेट, इसको जरा और सोचें इसके ऊपर. मैं बीज हूँ, इसका क्या मतलब है? मैं बीज हूँ, इसका क्या मतलब है? मैं बीज हूँ, इसका क्या मतलब है? द मोमेंट दिस थॉट बिकम्स योर्स, जब ये आपका अपना बन जाएगा तब ये वो काम करेगा जो इसको काम करना जरूरी है. राइट? ओके, सो एनी क्वेश्चंस, एनीबडी? वी कैन टेक फॉर अनदर 5 minutes. This thought in itself is powerful and it makes you feel in more control of things. But अगर मैं अपने आप को बीज हूँ और एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच दूँ, तो मेरे आसपास जो मेरे लोग हैं, my family, somehow I feel I might be defying them, their authority that is socially bound. Their authority as in? Say, I'm talking about my personal situation. I am in my family, my parents, my sister and myself. ठीक है? तो अगर मैं अपने आप को इस इंडिविजुअलिज्म में लेके जाऊं कि I need to believe that whatever happening around me is because of me. I can take charge and I need to work on it. तो कई कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनको कि फैमिली के साथ में आप चल रहे हो जब, तो यू कैन नॉट इग्नोर दोज सीनियरिटीज एंड अथॉरिटीज ऑफ थिंग्स. करेक्ट? Yes, yes. Many times it happens, and especially when you are in the middle of everything in the family. क्या आप उस चीज़ को नहीं कह सकते कि I am an individual and I am going to take charge of things like that. Whatever you might think is your thought process. तो तब क्या? Now there is a difference into what you are saying and what is the power of the thought in itself. आप जो कह रहे हो वो actually correct है. वो seed of life की बात उस aspect में आ रही है जहाँ पे actually वहाँ तो मैं अपनी life को control ही नहीं कर रही, वहाँ तो मैं दूसरों को control कर रही हूँ. So as we unfold in the journey further, we are also going to see how this interconnection of, you know, जो relationships हमारे आसपास है वो कैसे हमारा प्रोडक्ट है, हम उसको भी समझेंगे. क्योंकि हमने बात की ना, किसी सवाल था पर्पस क्या है, और हमने बात भी की थी कि इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि कुछ रिदम है या ऐसे कुछ भी हो रहा है, मतलब कुछ भी कहीं से भी कुछ भी हो जाता है. वी आर एक्चुअली गोइंग टू सी कि मुझसे ऐसा क्या है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है एंड वो इन्फ्लुएंस कैसे कर रहा है. वी आर एक्चुअली गोइंग टू सी दैट. एंड जहां तक हम आई एम द सीड ऑफ माई लाइफ की बात कर रहे हैं, इसको मैं पावर में कैसे कन्वर्ट करूं वो हम आगे आगे जाकर उस पर बात करेंगे. फॉर द टाइम बीइंग just take this thought with you and see how it works upliftingly for you. ये भी बहुत जरूरी है देखना कि कभी कभी होता है ना आई एम पावरफुल, ये थॉट लेके हम कभी कभी उस ईगोसेंट्रिक जोन में भी चले जाते हैं कि मेरे साथ तो पावरफुल कोई नहीं है. वी हैव टू अंडरस्टैंड कि थॉट का सिग्निफिकेंस क्या है और मुझे उससे कौन सा इमोशन ड्रॉ करना है. थॉट तो थॉट है, मैं उसको क्या मीनिंग दे रही हूँ वो मेरे लिए मैटर करेगा. मैं वही कह रही हूँ. हाँ, it has nothing to do with going on a power drive. It is कि हाँ, you are right कि पहले जब मैं अपने आप पे वर्क करूँ and keeping this mantra for myself to make myself more aware as an individual, as a soul. And we'll actually understand how each one of us influences and to what extent surroundings, and to what extent can we influence it to even get better. बहुत this entire understanding of the universe and how it works in itself is very beautiful. It's like decoding कि अच्छा ये ऐसे होता है ऐसे होता है. So we'll gradually uncover all those things. हम उन layers को धीरे धीरे uncover करेंगे. For today we took this thing with us. I am the seed of my life. Homework until we meet next, which is next weekend, next Saturday. Contemplate on this thought, what this thought means to you, और ये thought आप अपने लिए कैसे इसको एक पावर के तरीके से यूज कर सकते हो ताकि आपको बेनिफिट करे. राइट? इन केस इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस आई विल बी अवेलेबल इन द ग्रुप. आप जरूर ग्रुप में भी मुझसे पूछ सकते हैं. एंड आई विल कीप शेयरिंग डेली स्मॉल एक्सरसाइजेस ताकि हम इस जर्नी पर धीरे धीरे रोज रोज प्रोग्रेस करते रहें. यस, Thank you. great. So can you just share one takeaway before we leave for the day? One takeaway for the day today.
Yeah, so actually, Ankita, I am going through some health issues, and then in fact कभी-कभी दिमाग में ऐसा आ जाता था क्या होगा क्या नहीं होगा, बट आई थिंक आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं सोचूंगी क्या होगा क्यों होगा. आई थिंक जो होगा अच्छा ही होगा और नहीं होगा तो भी अच्छा ही. Beautiful, very nice, very beautiful, wonderful, great. Thank you. Okay, any other takeaway? मुझे ऐसा लगता है आई एम अ लिटिल बिट ऑफ अ नेचर लवर, तो पेड़ कभी खराब तो हो ही नहीं सकता, उसकी एक यूनिकनेस उसको किसी ना किसी तरीके से ब्यूटीफुल बनाती है. Uh, For me, I am going to look at my life as a tree only, wow. and I would want a banyan tree for myself. Yeah, banyan tree. So, Strong है काफी. so yeah, मेरे लिए वो Wonderful, बहुत सुंदर एनालिसिस थी. wonderful, wonderful. Right. और कोई takeaway किसी के लिए? Really, I mean, taking this thing as I'm the seed of my life is giving me more positivity and giving me more power to think in a focused way, so Wonderful. that I can Beautiful. change few things in my life. Thank you for time. Thank you for sharing. Right. शोभा जी, आपका कोई takeaway? हाँ, मैं स्ट्रॉन्ग सीड हूँ और अब आज से इस सेशन से मुझे ये मिला है कि नहीं, मुझे पॉजिटिव ही रहना है, जो नेगेटिविटी आ रही है उसको रिमूव करना है. Wonderful. Great. So, thank you so much आप सबका पार्टिसिपेट करने के लिए. आप सबके पार्टिसिपेशन से सेशन काफ़ी इंटरैक्टिव भी रहा एंड नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे, आपके एक्सपीरियंसेस भी शेयर करेंगे. तब तक हैप्पी प्रोग्रेस जर्नी, सेल्फ जर्नी एंड क्रिएटिव जर्नी टू ईच वन ऑफ यू. थैंक यू. Thank you so Namaste. much, Good Thank you so evening. everyone. very much for your Thank Thank you. you for motivating. Thank you.